Hello, good afternoon, everyone. Okay, so today's topic that we have is your industrial finance in India. A very interesting topic. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everyone. So, industrial finance in India means catering to the financial needs of the industrial sector. Industrial finance means catering to the financial needs of the industrial sector. Right? Now, what exactly is industrial finance? So we know industries in order to run, right, they would require finance, and they would require finance for meeting their requirements of fixed capital expenditure, which is on machines, right, and their working capital needs, which means in order to pay wages on a regular basis, they will need working capital. In order to buy raw material, they would need again working capital. Now, based on tenure, finance can be of short term, it can be of middle term, and it can be also be of long term, right? Now, long term finance is particularly important because long term finance जरूरी क्यों है सर? Long term finance इसलिए important है. It is important because industrial development depends on it, right? So if finance is not available for a longer period of time, companies will not be able to transform their technology. They will not be able to bring in better technology, right? So it is very important for long term, very important critical part of finance is to be long term finance, because companies are going to buy machinery, they are going to plan for a very long duration of time. So this is very important for developing countries like India, as their capital intensive investment demands are high, right? So short term finance is required to meet the working capital needs in general, whereas long term finance is important for planning part, right? So important sources of industrial finance in our country, in India, क्या क्या है सर? इंडिया में हमारे पास है, we have shares and debentures, we have public deposits, we have banking institutions, and we have institutional investors. ठीक है जी? तो हमारे पास इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए इंस्टीट्यूशंस भी अवेलेबल हैं बैंक से, राइट? वी हैव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कम इन. Then we have public deposits also, and we have shares and debentures. Shares and debentures. So the company can enter into share market and it can issue shares, or it can offer, let's say, debenture instruments like, let's say, for a 3-year period or for a 5-year period, the company will pay certain fixed amount to the debenture holder. Now, the major challenges under this issue, the major challenges with respect to finance sector in India is that first thing that we have is underdeveloped capital market. So if you see at the number of people depositing money in banks, right? अगर मैं बैंक्स में देखूं कि कितने लोग बैंक अकाउंट्स खोलते हैं और एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो नंबर बहुत हाई है. द नंबर इज वेरी हाई as compared to the number of investors or even the companies. इन्वेस्टर्स साथ साथ कंपनीज भी सर बहुत कम है जो कैपिटल मार्केट पे आती हैं और वहां से फंड रेजिंग करती हैं. ठीक है? सो दिस प्रेजेंट्स अ वेरी मेजर चैलेंज इन द फाइनेंस सेक्टर ऑफ इंडिया. सेकेंड थिंग, वी हैव वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो एट टाइम्स इन द बैंक्स. वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स इफ यू कंपेयर इट आउट विद द डेवलप्ड मार्केट्स. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम जापान का केस लें, तो जापान में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो 1%, 1.5% के आसपास मिल जाएंगे, राइट? लोन्स पे 2% के आसपास आपको इंटरेस्ट रेट्स मिल जाएंगे. लेकिन हमारे देश में, राइट, वी विल फाइंड द इंटरेस्ट रेट्स टू बी समवेयर क्लोज टू 7 to 8%. 7 to 8%. तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहता है. ठीक है जी? तीसरी चीज सर, शॉर्टेज ऑफ फंड्स भी है. फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री ने अप्लाई किया लोन ऑफ लेट्स से
50 लाख रुपीज, लेकिन लोन जो सैंक्शन हुआ इट इज जस्ट 10 लाख रुपीज, राइट। तो यहां पर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स भी देखी जाती है इंडस्ट्रीज के केस में, तो इंडस्ट्रीज अप्रोप्रिएट मैनर में बोरो नहीं कर पा रही है। देन फोर्थ थिंग दैट आई हैव इज मैच्योरिटी मिसमैच। मैच्योरिटी मिसमैच, राइट। सो डेब्ट्स ऑफ शॉर्ट टर्म बट लेंडिंग टू लॉन्ग गेस्टेशन प्रोजेक्ट्स, राइट। हो क्या रहा है सर, प्रोजेक्ट्स तो लंबे समय के हैं, इनका टेन्योर बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट टर्म फंडिंग हो रही है इनकी। शॉर्ट टर्म फंडिंग से क्या होगा, शॉर्ट टर्म फंडिंग में कंपनी को कम समय में उधार चुकाना पड़ेगा, राइट, विच मीन्स इन द शॉर्टर रन द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज। लाइबिलिटी जो है वो कंपनी की बढ़ जाती है, ठीक है। और प्रोजेक्ट खत्म भी नहीं हुआ, प्रोजेक्ट जो है फिनिश भी नहीं हुआ, उससे रिकवरी शुरू भी नहीं हुई और उससे पहले ही कंपनी को पे करना पड़ जाता है, ठीक है जी। तो कई बार हमें मैच्योरिटी मिसमैच देखने को मिलता है अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। फिफ्थ थिंग सर, पांचवी चीज जो देखने को मिल रही है अभी रिसेंटली है ये, हमें स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट देखने को मिल रही है बैंक्स की। तो बैंक्स भी लिक्विडिटी क्रंच को फेस कर रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू लेंड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द कंट्री। और सिक्स्थ इशू, सबसे इंपॉर्टेंट इशू, ये क्यों है प्रॉब्लम, स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट क्यों है, क्योंकि लिक्विडिटी के इश्यूज आ रहे हैं ड्यू टू हायर एनपीएज ऑफ द बैंक्स। एनपीएज मीन्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ द बैंक्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ द बैंक्स क्या होता है सर, नॉन परफॉर्मिंग असेट ऑफ अ बैंक? व्हाट इज अ नॉन परफॉर्मिंग असेट? एनपीए। नॉन परफॉर्मिंग असेट मीन्स नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब है कि सर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों पर ही कोई रीपेमेंट नहीं हुई है। रीपेमेंट, नो रीपेमेंट फॉर मोर देन 90 डेज, 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और कोई भी रीपेमेंट नहीं हो, तो सर उसे बैंक अपनी बुक्स में लिखता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है जी। तो असेट क्या है बैंक के लिए? असेट है लोन्स, असेट है लोन्स, और लोन्स पे कोई भी अमाउंट की रिकवरी नहीं हो रही है। लोन्स पर एक अकाउंट अमाउंट पे, लोन अकाउंट पे कोई भी रिकवरी नहीं हो रही है हमें। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैंक के लिए एनपीए क्रिएट हो रहा है, और बैंक्स के केस में एनपीएस जो है दीज आर ऑन द राइज सिंस 2012। 2012 से ही एनपीएस बैंक्स के लिए बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये है मेजर चैलेंजेस हमारे पास फाइनेंस सेक्टर में इंडिया में, जिसकी वजह से बैंक्स जो है वो लेंड नहीं कर पा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। क्या क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस के रिस्पेक्ट में? सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जो है कंट्री में, दैट इज योर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई। और आईएफसीआई को एस्टैब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1948 में, 1948 में, ठीक है जी। हालांकि इसे स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई, इट वॉज गिवन द स्टैट्यूटरी बैकिंग, लॉ की बैकिंग दी गई इसे, इट वॉज बैक्ड बाय अ लॉ बाय योर आईडीबीआई एक्ट ऑफ 1964, ठीक है जी। आईडीबीआई मतलब क्या है हमारा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके लिए एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने इन द ईयर 1964, और इसके थ्रू स्टैट्यूट की बैकिंग दी गई, लॉ की बैकिंग दी गई किसको? आईएफसीआई को, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में, एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। तो हमने यहाँ एक वर्ड यूज किया है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ये क्या होता है सर? व्हाट आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज? ये भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। What are public limited companies?
सर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वो कंपनीज हैं, कंपनीज विच ऑफर शेयर्स to general public, which offer shares to general public. And now sir, because they are issuing shares to general public, they are under public scrutiny. They are under public scrutiny. कैसे सर? सिंपल सी कहानी, शेयर मार्केट का जो रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, these companies they will have to submit their balance sheets. अपनी बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ेगी. इसका मतलब सर इनके प्रॉफिट्स और लॉसेस सब दिखाई दे जाएंगे, है ना. दे विल हैव टू सबमिट देयर बैलेंस शीट्स. और सर बैलेंस शीट्स क्योंकि सबमिट कर रहे हैं, सेबी क्या करेगा, सेबी इज गोइंग टू पब्लिश इट ऑन इट्स वेबसाइट. इसी को पब्लिश कर देगा ऑन वेबसाइट. और जैसे ही सर ये पब्लिश हुई, जैसे ही ये पब्लिश हुई, ऑटोमेटिकली दे आर अंडर पब्लिक स्क्रूटनी. तो पब्लिक क्या करेगी, जनता जो है वो एवेल्युएट करेगी कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है और किस रेट से आगे बढ़ रही है. ठीक है जी. ऐसी कंपनियों कहते हैं हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसका ऑपोजिट क्या है सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. इसका ऑपोजिट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या करेंगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो शेयर होल्डिंग होगी, शेयर होल्डिंग विल बी इन लिमिटेड हैंड्स, इन लिमिटेड हैंड्स. और ये लिमिटेड हैंड्स होंगे किसके, कौन शेयर होल्डर है यहाँ पे, जनरली आपकी फैमिली और रिलेटिव्स. Family and relatives they hold shares of the company. Family and relatives hold shares of the company. अब जैसे कि एग्जांपल दूं अगर मैं पब्लिक लिमिटेड का एग्जांपल है सर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो रिलायंस के शेयर्स पब्लिक में है. रिलायंस जो है वो सेबी को अपनी बैलेंस शीट सबमिट करता है. सो रिलायंस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. रिलायंस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. नॉर्म क्या है सर, रूल क्या है, रूल ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हमेशा a private limited company will have to use the suffix private limited company ahead of after its name, right. For example, आपने कंपनी खोली XYZ, इसकी शेयर होल्डिंग किसके पास है, आपके रिलेटिव्स के पास, फैमिली के पास. तो इस कंपनी के नाम के आगे आपको लगाना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. इसके नाम के आगे आपको लिखना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है जी. जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ऐसा कोई भी नाम नहीं है. सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी सीधा लिख सकती है XYZ कंपनी. XYZ कंपनी हम अज्यूम कर लेंगे दैट दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. जबकि यहां पर कंपल्शन है, देयर इज अ कंपल्शन टू यूज दिस. क्लियर है सर, ये क्लियर है ये. तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसको फंड करेगी एंड दिस इज गोइंग टू फंड योर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, राइट. Then IFCI is authorized to advance long and medium term finance only to those companies which are engaged in, मतलब सेक्टोरियल अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो किस सेक्टर में जाके फंड कर रहा है, कौन से सेक्टर की कंपनीज को फंड करेगा. इट विल फंड योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनीज, माइनिंग सेक्टर कंपनीज, शिपिंग सेक्टर कंपनीज एंड जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज. ठीक है जी. तो चार चीजें कही हैं इसने, पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा माइनिंग, तीसरा शिपिंग और जनरेशन, और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में रिलेटेड कंपनीज को फंड करेगा. तो यहां से आपको सेक्टर मिल गया, सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर अप टिल दिस पॉइंट, यस और नो? क्लियर अप टिल दिस पॉइंट, यस और नो? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर हो गया या नहीं. ये पहला इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडस्ट्रीज के लिए. चलो नेक्स्ट लेट्स गो टू सिडबी. सिडबी क्या करता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज में डील करता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया.
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं सर? सिडबी के हेडक्वार्टर्स है लखनऊ में एंड सिडबी वॉज सेटअप ऑन April 2 of April 1990। 2 April 1990 को ये एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, कैसे सर? पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया 1989 में और कहा कि हमको एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, वी नीड अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर केटरिंग टू द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। हमें एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन चाहिए जो प्रमोट करे, जो फाइनेंस करे किसको? स्मॉल इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल नीड्स का ध्यान रखे। सो सिडबी पैदा हुआ। सिडबी एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर। नाउ इट्स ऑब्जेक्टिव इज, इसका उद्देश्य क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन द क्रेडिट फ्लो to MSMEs and address both financial as well as developmental gaps in MSME ecosystem। तो MSME का जो दो चीज़ें जो सबसे क्रिटिकल है उसके लिए, पहला चीज़ फाइनेंस का और दूसरा उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट? दोनों ही एंड्स पे काम करता है सिडबी। ठीक है, तो मान लीजिए ग्लोबल वर्ल्ड में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है मैन्युफैक्चरिंग में, तो उस टेक्नोलॉजी को भारत में लाने की कोशिश करेगा। इट विल ट्राई एंड इंट्रोड्यूस दैट टेक्नोलॉजी इनटू द manufacturing sector into India also, and it will try and help these small industries to arrange finance, financial need भी provide करेगा, financial help भी provide करेगा कि किस तरीके से वो कंपनी उसको खरीदे। ठीक है जी, ये है हमारे पास शेयर होल्डिंग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिडबी, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ सिडबी। तो सिडबी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 15.4%, 15.4%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परसेंटेज है 16.73%, 16.73% शेयर होल्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। LIC का शेयर है 14.25 और नबार्ड का शेयर है 10% का। नबार्ड का शेयर है 10% का, मतलब नबार्ड भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। और अदर्स बाकी मतलब आपके जो इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको मिला के 43.62। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है दैट व्हाट इज द शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सिडबी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम तीसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जिसका नाम है मुद्रा बैंक। नाम है मुद्रा बैंक। मुद्रा भी सर न्यूज में है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुद्रा जो है इट इज अ रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी। नाउ मुद्रा डज नॉट लेंड डायरेक्टली टू द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। मुद्रा कभी भी डायरेक्टली आपके इंडिविजुअल्स को लोन नहीं देता। क्या करता है मुद्रा? मुद्रा के लोन्स जो हैं वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़े हैं। ठीक है, और ये बैंक्स को एनकरेज करेगा, NBFCs को एनकरेज करेगा और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, MFI, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करेगा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करेगा। ठीक है जी। And Mudra loan is extended for a variety of purposes which will provide income generation and employment creation। कहाँ पे सर? मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, रिटेल में, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज में। तो इन सारे डोमेन्स में लोन्स को एनकरेज करेगा और अपने पास जो है जितने भी बैंक्स ने मुद्रा के अंडर लोन्स दिए हैं उन सबका अपने पास पूरी डिटेल्स रखेगा। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? मुद्रा क्या करेगा? फिर आता है हमारे पास चौथा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज योर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये स्टेट लेवल पे ऑपरेट करेंगी, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। ना स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस दे वर सेट अप in each state to provide sufficient finance to medium and small scale industries। ठीक है जी। तो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है ये फाइनेंस दे सकता है। ठीक है जी।
to promote industrial development, and its objectives include guarantee loans raised by industrial units. तो guarantee दे के ही लोन मिल पाएंगे. Grant loans and advances to industrial units. Underwrite the issue of stocks. Underwrite मतलब हेल्प करता है कंपनीज को कि कैसे वो आईपीओ को इशू करें. ठीक है, अंडरराइटर का रोल भी प्ले कर सकता है शेयर्स के इशुएंस में, बॉन्ड्स के इशुएंस में, या फिर डिबेंचर के इशुएंस में. ठीक है जी. अंडरराइट का मतलब वो क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है. जैसे डिसीजन हो गए, मेजर डिसीजंस. अगर आपने लेक्चर अटेंड किया मेरा तो आपको पता होगा मेजर डिसीजंस रिगार्डिंग टाइमिंग ऑफ आईपीओ, प्राइस ऑफ आईपीओ, इन सब पे सजेशंस देगा. इट विल गिव सजेशंस टू द कंपनी. दिस इज द जॉब ऑफ अंडरराइटर. It will provide suggestions to a company. Now these corporations are owned by respective state governments. State governments के द्वारा own किया जाता है. And jointly with IDBI, they are functioning under the administrative control of the state governments. तो IDBI जो है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इनके लिए, वो रेगुलेटर बन जाएगा, राइट. वो देखता रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कंट्रोल हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रहेगा. करंटली अभी इस सिचुएशन में हमारे पास 18 SFC हैं. वी हैव 18 state financial corporations in India. We have 18 state financial corporations in India. फिर आता है सर हमारे पास स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ये भी स्टेट लेवल पे ऑपरेट करेंगे. Now the state level industrial corporations, they are registered under Companies Act of 1956. कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर इनको जो है रजिस्टर किया गया है. एंड दे आर होली ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स. राज्य सरकारों के द्वारा ओन किया जाता है इन्हें. इट इंक्लूड्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस, लार्ज इंडस्ट्रीज, एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक योर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स, which have been set up under industrial projects. ठीक है जी. Now SIDCs जो हैं वो हालांकि हमारे सारे ही स्टेट्स में है. ठीक है, लेकिन अलग अलग स्टेट के हिसाब से आपको इसका रोल दिखेगा. तो हिल स्टेट्स में ज्यादा काम नहीं किया आज तक, राइट. मेजॉरिटी ऑफ दीज SIDCs they have performed really well in manufacturing states of India. मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स में बहुत अच्छा रोल रहा है इनका. जैसे कि महाराष्ट्र हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया. तो इन स्टेट्स में अच्छा रोल देखने को मिला है SIDCs का. So they exist in all the states of India and they have developed industrial infrastructure facilities in these states. Total अभी हमारे पास 28 SIDC हैं. We have 28 SIDC in our country. ठीक है जी. क्लियर है ये भी यहां तक? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे. क्योंकि सर एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में, इसलिए हम पीछे हैं. ठीक है ना. और फाइनेंशियल नीड मैंने बताया ना, चैलेंजेस तो हैं ही अभी भी. ऐसा थोड़ी चैलेंजेस हैं नहीं, इसीलिए स्टार्टिंग में चैलेंजेस बताए आपको. नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI. ठीक है जी. बैंक वाला नहीं है ये, ICICI वो नहीं है ये. ठीक है, ये दूसरा है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. Now this was set up in January 1955. जनवरी 1955 में इसको सेटअप किया गया with the sponsorship of World Bank for the development of small and medium industries in the private sector. Now it is aimed to provide for loans and guarantees for loans either in rupees or in any foreign currency. ठीक है जी. So it is aimed to provide for loans and guarantees for loans
either in rupees or in any other foreign currency like ADR also, right? Now it also encourages and promotes private capital, both internal and external, to participate in such enterprises, to participate in such finances. ठीक है जी. जैसा कि आपने पूछा सर कि मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बनेंगे, तो उसका तरीका सर ये है, वे फॉरवर्ड ये है. See, what India needs today is strengthening of domestic sources of finance. आज जो भारत को ज़रूरत है वो ये है कि ये सारे के सारे जो हमारे पास सोर्सेज मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, 5 सोर्सेज 4 सोर्सेज, इन सारे सोर्सेज को पुश देने की ज़रूरत है, अपने कैपिटल मार्केट्स को बूस्ट करने की ज़रूरत है. वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. ठीक है जी. और साथ साथ we need to set up finance intermediaries also. कई बार entrepreneur जो है वो बिल्कुल blank होता है, he has no idea from where to get finance. तो financial help के लिए, समझने के लिए कि finance कैसे arrange होगा, उसके लिए हमें finance intermediaries भी चाहिए, experts चाहिए हमें. ठीक है जी. तो ये था आज का टॉपिक. अब आपका कोई डाउट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए. कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपका पूछिए. देखिए मेजरली तो इस टॉपिक में से फैक्ट्स पूछेगा, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि फैक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. कौन से साल में क्या आया, राइट, ईयर और नेम, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव सर, साथ में हेडक्वार्टर की जानकारी. ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए. डाउट, कोई क्वेश्चन पूछिए. पहली स्लाइड देखनी है आपको, ये लीजिए. ये हैं सर चैलेंजेस, ये हैं चैलेंजेस, इन पर काम करना पड़ेगा हमें. और ये हैं इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जिनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. वी नीड टू स्ट्रेंथन दीज सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस. चेयरमैन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता क्योंकि पर्सन इन न्यूज है तो वो चेंज होता रहता है. जैसे ही एग्जाम की डेट क्लियर हो जाए उसके बाद चेयरमैन जैसी इंफॉर्मेशन आप ऐड अप कर दीजिएगा. ठीक है जी. जैसे ही एग्जाम की डेट क्लियर हो जाए उसके बाद मैं कहूंगा कि जहां पर भी चेंज हो रहा है खासकर चेयरमैन, वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है जी. सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, आपको लगे उनके लिए यूजफुल हो सकता है. बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं आप इसे. चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे एंड से नोटिफिकेशन मिलती रहे. चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला सेशन के लिए. थैंक यू वेरी मच. जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक मोटिवेटेड रहिए, तैयारी अपनी जारी रखिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए. थैंक यू.